And we have Prashant. Prashant, welcome. क्रिकेट के लिए और एक बंदा मिल गया है, अगर वो डरा नहीं रहा हूँ, आपको डरा रहा हूँ, प्रेक्षक वालों संभाल ना, हमारे पास क्रिकेट आ रहा है, 5th January को ना। Now friends, 30th November already we have sent you all emails and SMS and everything. Tomorrow we have a very wonderful seminar. Tomorrow morning 9 o'clock at Pancholia Hall, SVP. Celebrate life with children. And E. Swaminathan, who is a renowned speaker, will be there, and I definitely assure you that आपका पूरा वहाँ पे जो वक्त गुजरेगा बेस्ट आपको मिलेगा, and you will enjoy with him, and he will give you a lot of good guidance. We are having more than 500 registrations already done, but I want all my Rotarians to be there and enjoy the event and take the best out of it. Prashant, you all are welcome. Deepali, you also are welcome. Please come tomorrow morning 9 o'clock if you can spare a little bit of time. I know parenting is a little bit far away from, but you will enjoy the kind of speaker and talk and everything. It's at Pancholia Hall, SVP. अगर school देखा है तो Pancholia Hall is there, and say Rotary Club of Borivali. So they will give you passes and they will sit you. Only Rotary member can come? No, any member. It's open for all. Basically, anybody can come over there. Not basically for that. Friends, you also know that. Talks will be in Rotary English or mix or English. Swaminathan will mostly will be in English. Mostly. Friends, we have, may I ask past President Chetan Desai to please come forward and announce the Star League Award for the month October. Friends, before I announce the Star Rotarian of October 2013, one announcement. That tomorrow is the last day to register if you want to get the early bird prize, to register for the conference. Those who have not, I think Vinod Bagil, I think conference also will be there in his talk a little bit about conference. But like it is one of the lifetime experience. If you have not attended conference, I am telling you all the new members must attend and register by tomorrow, so you will get the early bird prize. Okay, and now coming to the Vinod Bhai, this is the Silver Jubilee year, so every month we have a Star Rotarian of the Month award, which we give it to the deserving candidate who has worked during that month with all the enthusiasm. And this year we have, I think they have worked fantastically well, and for October 2013 we have Rotarian Rasmikant Sanghvi as a Star Rotarian. Asha Bhabhi also, I think she deserves another round of applause because the way both have worked in the month of October during the Navratri is fantastic. This keep is going here. You should also. You only say 8 member make a job. More than work, more than earn. Great, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Just for chief guest's information, this couple has worked wonderfully. In the month of October, this couple has worked extremely hard to, and they got around 100 medical kits. We have put a stall at Pansil Garden for the entire Navratri Utsav, and both of them were there all 9 days, and I think they deserve, a very
Friends, आप सबको पता है this year Silver Jubilee year में one of the again a mega event that we have planned is nothing but Mumbai Dawn. बेसिकली इसके पीछे बहुत सारा काम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन I need more hands to make it more successful than what it is right now. I appeal all of you. We already have received the clearance or the approval from two सब gardens में जहाँ पे सब walkers आते हैं. We can go to there and we can distribute our pamphlets over there, put up a stall over there. उसकी permission हमें आ गई है, तो there are around 8 gardens we have in Borivali. We can go there and can distribute our pamphlets and do offline registration. I need members who can come there on a couple of days in a week, in the morning, say 6:30 to 7:30. So they can come there and can just be there and distribute the pamphlets and talk to them regarding Mumbai or what is happening and all that stuff. The other thing we are doing is we already have midday we already have tied up, and we are just waiting for a right moment. We have got a guidance that you start in December rather than recall value will be better. So in December onwards we are going to start the advertisements in the midday, Gujarati and English both. Plus we are going to put up the hoardings with the Chetan, and our Nitin Bhai has given us a good contact, and he made it possible that we'll get the hoardings available to us and we will just print it and we'll put it up over there. So there are a lot of activities are going on, and we have a very good response on online. Like Prashant is here because of Mumbai Dawn. I and Chetan went there for a Mumbai Dawn promotion at National Gandhi, Sanjay Gandhi National Park, and he met there and he was a Rotaractor. बोला मुझे रोटरी तो मालूम है, रोटरेट मालूम है, तो बोला चलो आ जाओ. So he is here. And likewise, Chetan, last Sunday he met to one of the SBI lady who is working in SBI, and she also has shown the interest in becoming a member or a work for a Rotary, work for IBAN. And basically the entire event, Hemang, you may be knowing, Hemang को बहुत बुलाते हैं, is for eye donation awareness. We are saying celebrate, learn for eye donation awareness. And so we are saying the people who are talking to us at the Sanjay Gandhi National Park and everywhere, wherever we are going, they already are showing lot of enthusiasm, and let us see that all those come to our God and make it a very successful run. Because we want to provide them a professional, be it 500, be it 5,000. The efforts that we are going to put up will be very professional. We are going to give everyone a very good kind of experience so that they say that okay, no, it is a very professional run managed by professional people and for a very good cause. So that will have a very good effect in a PR and everywhere. So please participate. सब लोग at least अपनी सोसाइटी में जाके 2-4 जन को तो भर्ती करके लेके आओ. Then we are 120. So we can get something like 200-250 people from our own society only. 2-3 जन भी अगर फॉर्म भरा के लेके आते हो, it will be a great help, you know. तो फॉर्म्स ले जाइए, चेतन के साथ कांटेक्ट करिए. चेतन will give you the forms we already have here. तो that will be again लेके जाइए साथ. और साथ में लीफलेट्स भी है. अगर आप सोसाइटी में जितने फ्लैग्स है उतने लीफलेट्स लेके जाइए, सबको बांट दीजिए और बाद में बोलिए कि फॉर्म भरने हैं तो मेरे पास है. तो क्या है इसमें, बच्चे लोग अगर एक आपके सोसाइटी में अगर क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, अगर वो एक बच्चा भी आता है ना दौड़ के लिए, तो सारे बच्चे आएंगे. अगर सबके ग्रुप रहते हैं, हमारे यहाँ सोसाइटी में 3-4 ग्रुप है जो साथ में बैठते हैं, इट इज नॉट दैट डिफरेंट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल ग्रुप नहीं, दे सिट टुगेदर एंड दे एंजॉय. तो हम लोग अगर एक आदमी भी आता है, पूरी फैमिली आती है. वी आर सेइंग इट्स अ फैमिली इवेंट. सो प्लीज ट्राई एंड गेट थिंग डन. वी ऑलरेडी लास्ट 20 days है अपने पास. So far, so how many registered? We already have more than 450 people with us. We want to go for more than. Is there any limit? I mean, no limit. Maximum ceiling? 1,000 we are controlling. We are Because you know, for management, my point was there. 1,000 we will take a call because there are people My from point was there Pune. only.
So please register your name और मुझे नाम दे दो आपके कि मैं काम करूँ. We want to go to school, we want to go to colleges, we want to go to lot of NCF. ये सब जगह पे जाना है. We need hands. बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन I am sure and you know president सुबह से लेके शाम तक हरी भाई मेरे साथ घूमोगे तो पता चलेगा कि कितना काम हो रहा है. क्रिकेट भी मैं मेरी बैग अभी गाड़ी देखोगे तो ये बैग निकालने के लिए पहले तो सब क्रिकेट का सामान निकालना पड़ा, फिर वो निकालना पड़ा. तो क्रिकेट भी सुबह जाके खेलो, टीम भी बनाओ, कल मैच है तो उसके लिए भी सब. So lot of things are going on. It is that I need more hands. What I need to say is, if some good people come forward and say I take this and I do this, then it will work. It works that way. Anyways, that is how it goes. वो तो हमारी खट्टी मीठी बातें में बताएंगे अभी और कि प्रेसिडेंट क्या क्या करता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करता है. हाँ. Before I ask प्रेसिडेंट के ये इसके बारे में जो हमारे चीफ गेस्ट बोलने वाले हैं उसके ऊपर एक बात करना चाहता हूँ. रिसेंटली कल ही मेरी बात हुई मेरे को प्रेसिडेंट के साथ. ऐसे ही बात हो रही थी, क्या है ये वो आईबैक के बारे में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है वो सब. मतलब मेरा तो क्या है कि मैं मेरे फ्रेंड की शादी में गया विनोद भाई, तो बोलते हैं उधर गया तो शादी एकदम जोरदार शादी थी, ये थी. तो मैं रिसेप्शन में उसके साथ खाद पीने गया, मेरे खास फ्रेंड था, तो उसको बोला क्या तू इतना पैसा खर्चा कर रहा है, उससे अच्छा थोड़ा डोनेट कर रोटरी को तो हम कुछ अच्छा इवेंट कर सकते हैं. तो बोलते हैं क्या यार तू शादी में भी ऐसी बात करता है, बोला तू इतना खर्चा कर रहा है तो क्यों मेरे को तो नहीं दे रहा है. तो ठीक है तू भी लिख ले, मेरे 11,000 लिख ले और कोई भी जगह में वापरो. तो प्रेसिडेंट का तो ऐसा होता है जहां भी जाओ किसी को. Now can I ask past President Chetan to please introduce our chief. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आपने प्रफुल्ल शर्मा जी को सुना रहेगा जब उन्होंने बताया कि रोटरी में मैंने क्या खोया क्या पाया. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतना टाइम देते हैं रोटरी में, सुबह से शाम तक आप देख लो, आप डिस्ट्रिक्ट में घूमते हो, बहुत सारा टाइम आप देते हो और आप फिर कभी आपको ये होता है कि यार इतना टाइम देने के बाद हमको क्या मिला. तो आज के जो चीफ गेस्ट हैं, अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे रोटरी में इतना टाइम देने के बाद विनोद ठक्कर जैसे मित्र मिले. और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं इस व्यक्ति की रैग टू रिचेस स्टोरी जिसे हम बोलते हैं कि बीएससी करने के बाद he is born in Gujarat in Patan and he came to Mumbai with nothing. And today he is considered to be one of the leading realty consultant of Mumbai. That is the rags to riches story of Vinod Thakkar. Some of the achievements I read out, but let me share that I have a special affinity towards Vinod because when I was president in 2008-9, he was my assistant governor. And today when I am assistant governor, I have learned so much from Vinod. You know how to take people with you, how to interact with presidents. You know, बहुत ही ये बंदे में एक जादू है जो किसी को भी मिलेगा तो वो अपना बना लेता है. Lot of things which I have learned. Now coming to his professional biodata, like Rodrigo Borivali, he started his business in 1989. तो एक हमारा में commonality वो भी है that we also started Vibrant in 1989. Vinod started his business in 1989. Today he is a CEO of Square Feet Property Consultant Private Limited, specializing in marketing of residential and commercial projects. Currently, Square Feet has 17 offices spread across Maharashtra and Gujarat. He is a highly proficient real estate professional with proven analytical abilities and organization skills, as well as 25 years of real estate project marketing experience involving leadership and consulting on various aspects of property transactions with a customer friendly approach. Dosto, in this process, he has created so many leaders. I was just looking at the photograph of all the employees or the team that he has built, and very interesting information which I got was his office in Ahmedabad. He recruited some guy who was a graduate, but he couldn't talk. And with Vinod's leadership magic wand,
that particular boy who couldn't speak in English, within 5 months, he gave a presentation to the packed house of realty buyers, and he talked about India GDP and Ahmedabad GDP or Gujarat GDP in fluent English. So this is the charm of this guy, that not only he has created business, but he has created leaders out of that. He is a member of National Association of Realtors India, founder member and life member of Association of Real Estate Agents, Area Group. He was president of Area Group for year 2004 till 2006. He was the chairman program for 4th National Association of Realtors India Annual Convention held on 23rd and 24th June 2012 at Renaissance, where we have our district conference. Friends, to have that convention in such a 5-star venue, it's a to get sponsorship and to manage things, I think it's a Herculean task, and he has done it beautifully well. He was instrumental in organizing and conducting 4 real estate conferences in the year 2004, 5, 2008 and 2011 as the chairman of the conference, which was attended by more than 350 delegates from all over Mumbai. Friends, now his Rotary career, he was invited by Rotary Club of Mumbai Dahisar in 1995, received Best Rotarian Awards twice, club president during 2000-2001, and under his leadership, the club has won 8 awards in 2000-2001. As I told you, he was assistant governor in 2008-9. He was district secretary in 2009-10. He is a major donor. Major donor is a person, this is a TRF month, November. Major donor is a person who donates 10,000 rupees in cash. Is no matching. So he is a major donor. And $10,000. $10,000. He is assistant district trainer 2011-12. He is governor special officer for the year 2012-13 for Rotary Foundation. He is co-chairman VTT this year. He has inducted 53 members already. Vinod Thakkar has inducted 53 members, 27 in home club, and he has suggested 26 members to other clubs. I think he is one of the leading Rotarian to do so. I have not seen many people suggesting members to other clubs like Vinod does. Today also, like he has suggested one prospective member, I am sure the members of director will take that up. Okay, his hobbies are to play basketball, sports, and he has played basketball for the Gujarat University. He enjoys fellowship, music, outing and reading. Happily married to Meena. 2 daughters, Sonia and Bhumi, and Sonia is a Rotary Youth Exchange student. She went to Mexico District 1570 in year 2005-06, and Bhumi is studying in FI BCom. With this introduction, I give it to one of the most sought after speaker in 3140, Rotary Vinod Thakkar. हेलो ठीक है हेलो नमस्कार थोड़ा एक बार ताली हो जाए सब Silver Jubilee President this guy has wonderful smile और बहुत addicted है जितने लोगों को पूरे साल के दौरान प्रेसिडेंट ने मतलब मुलाकात की होगी सारे लोग हंसते होंगे Chetan, thank you very much. These two brothers, I always tell them Marco and Steve off. Amazing, both of them has got a lot of energy, enthusiasm, a lot of positive attitude. District Secretary Vinay Vyas, very good friend,
Hari bhai, thank you for being here, and a lot of new faces actually, and that gives a lot of energy, you know. रोटरी की सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल सब कुछ बदलता है, तो प्रेसिडेंट से लेके आ रहे प्रेसिडेंट तक, और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर यही एक खास वजह है रोटरी की, जिसने रोटरी को 108 साल तक चलने दिया और अभी भी आगे चल रहा है। आप सोचो कि अगर यहाँ से जो लोग बैठते हैं वो 1 साल के बाद अगर चेंज नहीं होते तो यहाँ लोग नहीं होते, हाँ, बिकॉज आप कितना सहन करोगे। और जिस हिसाब से अभी मयंक ने बताया कि प्रेसिडेंटशिप इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली, और मैं हमेशा कहता हूँ कि रोटरी में कोई लोग 30 साल 40 साल भी ऐसे लोग भी है रोटरी में जिन्होंने 40 साल निकाले, लेकिन रोटरी आपको पूरी समझ में नहीं आएगी जब तक आप रोटरी में क्लब प्रेसिडेंट नहीं। आई गारंटी यू, यू शो मी वन रोटेरियन हु इज इन रोटरी फॉर 30-40 years और प्रेसिडेंट अगर नहीं बना है वो बंदा, तो उसको मेरे हिसाब से रोटरी पूरी समझ में नहीं आती। खैर, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ जो रोटरी में सीखा हूँ और लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस है, डोंट बी सीरियस इन लाइफ और इन रोटरी, बट यस यू शुड बी सिंसियर। This is the outcome of my 18 years of Rotary experience. This is one sentence if you can actually adopt in your life, life is beautiful. Life is really beautiful. Most of the time, you know, these two things. One is seriousness, and another thing, people most of the time talk that, "Arey, yaar, problem hai." There is nothing called problem in the life. You should always, you know, alter that word problem into challenge. And the moment you make it challenge, you know, and you just go ahead and solve that challenge, life is again gives you a lot of positive attitude. दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की एक फितरत होती है, और हम एक इंसान के लिए एक अपने दिमाग में एक फिक्स आइडेंटिटी कर लेते हैं। अगर हम डॉक्टर भरत पंड्या की बात करें तो रोटरी में ऐसा कहा जाता है कि भरत पंड्या अगर कहाँ पे बात करते और उनकी बात में महात्मा गांधी या फ्रैंकलिन या कोई जो ऐसे नाम की कोटेशन देते हैं जो हमको कभी पता भी नहीं, तो भरत पंड्या ने बात किया ऐसा आपको लगेगा नहीं। कुछ यहाँ पे नए मेंबर्स हैं तो मैं कुछ बातें करूंगा तो शायद यू नो साइड ट्रैक पे जा सकता है। उल्लास कोलटकर करके एक पास गवर्नर है, उनकी अगर बात कहाँ पे भी हो चीफ गेस्ट के तौर पे, और अगर वो संस्कृत के श्लोक नहीं बोलेंगे तो तब तक उल्लास कोलटकर ने बात की ऐसा लगेगा। ऐसे हमारे राहुल तिवाड़ी है पास गवर्नर, उन्होंने बात की और अगर 3 स्टोरी की बात नहीं करेंगे तो बात पूरी नहीं होती। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ 2005-06 में। प्रफुल्ल शर्मा मेरे खास मित्र हैं, हम दोनों साथ में प्रेसिडेंट थे, और कई जगह पे ऐसा होता है कि हमको दोनों को साथ में स्पीकर के तौर पे बुलाते, मतलब आपने कभी रोटरी वर्ल्ड में ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई क्लब 2 जन को साथ में बुला दे स्पीकर करके, ऐसे जाने वाले जोड़ी, मतलब एक के ऊपर एक फ्री है। प्रफुल्ल ने मेरे साथ ऐसा हुआ 2005-06 में एक स्किट लिखी थी रोटरी में। सर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है नए मेंबर्स के लिए कि आपने स्कूल कॉलेज के बाद में करियर संभाला, उसके बाद वक्त नहीं मिलता है, फिर शादी होती है, तो जिम्मेदारी में आदमी बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ के आता है। रोटरी एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको, जितने भी आपके दिल में अरमान है, कुछ चीज छूट गई है, चाहे क्रिकेट खेलना हो या किसी को संगीत का शौक है, किसी को डांस का शौक है। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अंदर भी एक कलाकार है। प्रफुल्ल शर्मा की बदौलत मुझे उन्होंने एक स्किट लिखी, और क्योंकि मैं रियल एस्टेट से हूँ, ज्यादा करके मैंने सिंधी लोगों से मेरा नाता रहा है, चाहे वो रायजा हो, हीरानंदानी हो, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर हो, तो एक पकड़ आ गई सिंधी लोगों की। तो उसने सिंधी कैरेक्टर लिखा और मैंने कुछ स्किट में परफॉर्म किया डिस्ट्रिक्ट में। तो लोगों को ऐसा लगा, 2005-06 में हमने प्रीपेड्स में किया था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था चेला रामानी का। तो अब उल्लासनगर के जो बंदे थे उनको तो ऐसा ही लगा, कुछ लोग तो आके बोले, अरे यार आप तो सिंधी, पक्का सिंधी लगते हो। मैं बोला, नहीं यार, मैं गुजराती हूँ। अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या विनोद ठक्कर के लिए, अभी भी काफी क्लब में मैं जाता हूँ तो सब लोग ऐसे हंसते हैं मुझे देख के, वैसे ही कुछ बोलो उसके पहले भी हंसते हैं। अब पता नहीं माइक ने भी क्या बोला, अरे प्रेसिडेंट लोग भी ऐसा ही बोलते हैं क्लब में, पब्लिक को जमा करने, अरे क्या कॉमेडी आने वाला है। सच्ची ऐसा बोला है ना। देखो तो
हमारे खास मित्र साजन मूलचंदानी करके उल्लासनगर से एक्चुअली 2 महीने पहले उनकी देहांत हो गई, लेकिन मैंने जब से खट्टी मीठी बात जहाँ पे भी कहा है तो ये बंदे का नाम जरूर लिया है। और मैंने फिर उस दिन जब ये न्यूज आया तो उसमें ग्रुप मेल में डाला भी कि मैं 5 साल से रोटरी की खट्टी मीठी बात करता हूँ, तो उसमें साजन मूलचंदानी का नाम देता हूँ। और मैं भले उनकी देहांत हो गई, लेकिन इस बंदे को मैं मेरी बात के जरिए रोटरी में जिंदा रखूंगा। तो साजन जी का एक बार संडे मुझे फोन आता है सुबह में, मैंने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, अरे विनोद भाई कैसा है भाई? मैं बोला अरे यार साजन भाई, बोले यार कैसे याद किया? अरे यार तेरे को मालूम पड़ गया मेरा आवाज पहचान है? मैं बोला चलिए अभी ट्रू कॉलर आ गया ना। अच्छा एक काम करो यार, 10:30 बजे उल्लासनगर में पहुंचो। मैं बोला यार साजन भाई क्या हो गया? अरे हमने इधर पूरा डिस्ट्रिक्ट का बड़ा रायला रखा है, हाँ 400-450 स्टूडेंट है। तो मैं तो खुश हो गया एकदम। मैं बोला डिस्ट्रिक्ट रायला में अपने जैसे लोगों को 450 स्टूडेंट स्पीकर करके बुला रहा है, खुश हो गया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं बोला साजन भाई मैं सोचा यहाँ से कोई अपने एरिया से कोई जा रहा है उधर स्पीकर करके, तो साथ में चले जाओ। मैं बोला साजन भाई इधर से कोई स्पीकर आ रहा है क्या अपना वेस्टर्न समझ? अरे यार तुम दूसरा स्पीकर को गोली मारो ना, तुम 10:30 बजे पहुंचो ना। मैं बोला चलो नहीं पूछता है, लेकिन अभी एक बात तो बताओ मेरे को कि मेरे को कौन सा टॉपिक पे बात करना है। बच्चों लोग के बीच में जाके ऐसा विदाउट प्रिपरेशन बात नहीं कर सकता है, रोटरी में किधर भी बात कर सकता है। देखो यार ऐसा है, ऐसा तो प्रोग्राम पूरा सेट है। क्या है मेरे को 10:30-11 के बीच का जो प्रोग्राम है ना, उधर थोड़ा गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ आप आके थोड़ा मिमिक्री करो ना। अब उसने जब से स्क्रिप्ट देखा उसको समझ में ये है कि विनोद ठक्कर मतलब खाली यही काम करता है। जैसे चेतन ने कहा 95 में मैंने रोटरी ज्वाइन किया, और रोटरी में एक्चुअली रोटरी में क्या लाइफ में बहुत ह्यूमर है। एक्चुअली हम लोग देखते नहीं उसकी तरफ, पता नहीं हम लोग क्या टेंशन लेके घूमते हैं आज की तारीख में। नया मेंबर जब मैं हुआ रोटरी में, तब से लेके सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट के भी पोस्ट लिए, तो एक परिवर्तन आया। और एक इंडिविजुअल मेरे अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन आया, मेरे थॉट प्रोसेस में परिवर्तन आया। और रोटरी को मैंने बहुत नजदीक से देखा। आप सब लोग वैष्णो देवी गए होंगे, वैष्णो देवी गए ना सब माता के दरबार में। कटरा जो बेस है उसका, अगर आप वहां खड़े रह के भवन देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं देखेगा, करेक्ट। और आप जैसे जैसे जय माता दी बोल के स्टेप चढ़ना चालू करते हैं, तो कटरा से जो आपको व्यू मिलता है, और वो 1 किलोमीटर के बाद आप जाएंगे तो कुछ अलग व्यू मिलेगा। जब आप चलते हैं वहां पे, तो कटरा में जितने लोग थे, चलते चलते नए लोग मिलेंगे आपको रास्ते में। 1 किलोमीटर के बाद आपके आसपास का माहौल बदलेगा, लोग बदलेंगे, आपको कुछ अलग सुनाई देगा। जैसे आप अर्धकवरी में पहुंचते हैं तो वहां से तो ब्यूटीफुल व्यू है, मतलब योर विजन इज मोर बिगर। और फाइनली जब आप ऊपर पहुंचते हैं भवन पे, तो वहां से तो लाइफ इज ब्यूटीफुल, वहां से आप नीचे तक देख सकते हैं। एक्चुअली मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है कि नया मेंबर जब होता है, आज काफी लोग नए मेंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो नए मेंबर को फर्स्ट टाइम हम लोग इन्वाइट करते हैं रोटरी में, तो बहुत टेंशन में आता है। आज मैंने जो बंदे को मुझे लगता है डर के मारे नहीं आया, वो फियर रहता है, बिकॉज आप अलग ग्रुप में जा रहे हो, कभी फर्स्ट टाइम गए हो, जैन जागृति में जा जाके आदमी फिर कंटाल गया, तो उसके लिए रोटरी बहुत अलग कल्चर। तो फर्स्ट टाइम आता है तो देखता है सब मेंबर को। अब हर एक इंसान का अपना अपना एक कैरेक्टर है, तो ध्यान से देखेगा, हाँ इसका थोड़ा लाइफस्टाइल कपड़े वपड़े अपने जैसे है, तो उसके साथ जाके ही बात करेगा। तो वहां से लेके फिर वो क्लब में बोर्ड में आता है, क्लब सेक्रेटरी बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। हर एक स्टेज पे उसके आसपास के लोग बदलते हैं, वो जो सुनता है वो भी अलग आता है। जैसे अपना मयंक अभी प्रेसिडेंट है, तो उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाने को मिलता है, दूसरे क्लब प्रेसिडेंट के साथ बात करता है, दूसरे लोग अपनी बात करते हैं। इट्स लॉट ऑफ लर्निंग। तो मैंने भी हर साल नए नए रोल लिए, तो अपने आसपास के लोग को बदल के देता है। कुछ कॉन्वर्जेशन जो मैंने सुनी है, कुछ ऑब्जर्वेशन देखी है मैंने इतने साल में, वो सब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ अभी कि रोटरी क्या है, रोटरी में क्या क्या होता है, और हम लोग उसको कैसे नजरिए से देखते हैं। और अगर आप चाहे तो हर मीटिंग में आके हंसते हंसते, मुझे बहुत अच्छा लगा वो यंग मैन को देख के,
I always say, कोई पूछता है तो all is well, I always say always, you know. It is in our attitude, you know. Life is always beautiful. तो ये 18 साल में रोटरी को मैंने, I am a good observer. मेरे व्यास ने अभी आके मेरे को पूछा कि बस अपना कुछ बोलना मत, मुझे एक्चुअली उन्होंने याद किया उनके बीच में एक बात ले लेता हूँ। पास प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वो सब कलाकार बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जैसे कलाकार आ जाते हैं। ये सिंधी का मेरा डायलॉग इतना फेमस हो गया है कि गोपाल मंदानिया रोटरी क्लब वर्षों के बहुत सीनियर रोटेरियन है और अभी अभी ताजे ताजे वो नॉमिनेट भी हो गए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए। उनकी क्लब में गया मैं खट्टी मीठी बात के ऊपर। बाय द वे दिस इज द 90th मीटिंग आई एम एड्रेसिंग ऑन रोटरी खट्टी मीठी। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आई वाज वेरी हैप्पी, यू नो, सीनियर रोटेरियन इंट्रोडक्शन दे रहे। क्लब में सब उन्होंने बात की, बायोडेटा पढ़ा, बाद में जाते जाते बिकॉज उनका स्वभाव ऐसा है, बोले यार बाकी सब चीज तो ठीक है लेकिन ये बंदा सिंधी इतना अच्छा बोलता है, मुझे डाउट है कि इसकी जरूर गर्लफ्रेंड सिंधी रही होगी। ऐसा करके उसने कंक्लूड किया, ऐसा करके मेरा बायोडेटा कंक्लूड किया। और मैं भी इतने साल रोटरी में रह के काफी मतलब कलाकारी आ गई अपने में। तो मैंने मेरे ओपनिंग रिमार्क में वही कहा कि गोपाल जी थैंक यू वेरी मच, क्या जबरदस्त आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर बात ऐसी ही होती गर्लफ्रेंड वाली तो मेरी मारवाड़ी भी इतनी अच्छी होती। रोटरी में हर साल गवर्नर जो आते हैं अपने अपने स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे वो फिल्म आती है, नई पिक्चर आती है, कोई भी तो प्रमोशन के लिए प्रोड्यूसर और वो एक्टर जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, माय फिल्म इज डिफरेंट, यू नो। डिफरेंट कुछ होता नहीं एक्चुअली, वो हर साल कुछ ना कुछ करते हैं लेकिन ऐसा कुछ डिफरेंट होता नहीं, वो पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। विनय व्यास जब असिस्टेंट गवर्नर थे और सबसे ज्यादा आपको अगर ह्यूमर है वो इंस्टॉलेशन में, मैंने अभी तक 18 साल में तकरीबन 350 इंस्टॉलेशन अटेंड किए अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा 5-10 इधर-उधर हो सकता है, ज्यादा फिगर पे मत जाना। रोटरी में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक है जो रोटरी को एनालाइज करते हैं, वी हैव देयर एटीट्यूड। अब कुछ भी मैं बोलूंगा तो कुछ लोग होंगे ठीक है यार ऐसा 350 कैसा बोला उसको, फिगर वो एनालिटिकल माइंड होता है। Those people who analyze, maybe Rotary, for them life is difficult actually in Rotary. There are a lot of people who criticize Rotary. नहीं यार ये क्या, ये ऐसा दौड़ बोड़ क्या Rotary का काम है क्या, कुछ भी बताओ क्या Rotary का काम करते हैं वो लोग कर रहे हैं ना, होता है बड़ा, मेरा तो छोटा छोटा काम क्यों। जो क्रिटिसाइज करता है रोटरी को, उसके लिए यू नो रोटरी इज वर्स, लाइफ इज वर्स फॉर हिम। आई थिंक रोटरी इज ब्यूटीफुल फॉर देम हु एंजॉयज रोटरी। आई थिंक यू शुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एंजॉयिंग रोटरी। बाकी सारा चीज एनालिसिस नहीं करने का। हम लोग रोटरी में आते हैं तो वी शुड एक्चुअली डी-स्ट्रेस अवरसेल्फ। मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ, आज 1 घंटा नेशनल पार्क गया हूँ, क्रिकेट खेला हूँ, फिर मेरा कंपनी का पूरा ट्रेनिंग था। चेतन का फोन आया तभी 6:45 बजे में मेरा रोड से निकला, घर पे जाके वापस कपड़े चेंज करके आ गए। और अभी जब मैं इधर आके बैठा तो आई वाज एक्चुअली यॉर्निंग। और अब जैसे यहाँ पे बैठ गया और बात करना चालू किया है तो मैं भूल गया कि मेरा सुबह से बॉडी में क्या था। You know that kind of energy you get out. तो उस साल जब बॉस अपने असिस्टेंट गवर्नर थे तो गवर्नर ने ऐसा सिस्टम रखा था कि एक ग्रुप कोऑर्डिनेटर रहता है। आप जो आपका भी इंस्टॉलेशन हुआ होगा तो ग्रुप कोऑर्डिनेटर विल इंट्रोड्यूस असिस्टेंट गवर्नर एंड असिस्टेंट गवर्नर विल इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। रोटरी क्लब बॉम्बे कांदिवली, जो कि कांदिवली ईस्ट का आपका ही बच्चा है, रोटरी क्लब बोरीवली ने पैदा किया था, उस क्लब का इंस्टॉलेशन में मैं गया। इंस्टॉलेशन चालू है, जैसे बेसिक आउटगोइंग प्रेसिडेंट का सब होने के बाद अभी ग्रुप कोऑर्डिनेटर जो थे वो आर सिंह करके बहुत सीनियर रोटरी में पास प्रेसिडेंट है। अब देखो लैंग्वेज और इंग्लिश उसमें से कहां से ह्यूमर आती। आपने तो गुजराती ज्यादा है, गुजराती लोग का इंग्लिश, गुजराती इंग्लिश अलग है। मुझे मालूम है, मैं गुजरात से हूँ, मैंने मेरा एजुकेशन
गुजराती में किया हुआ है। मैं बम्बई में आया तो मुझे इंग्लिश बोलने को नहीं आता था। और हमारे टाइम पे, वो टाइम पे कॉलेज में अगर किसी को हाउ आर यू बोल दिया समझो कॉलेज में वो टाइम पे, तो सामने से क्या बोलता है, अरे बड़ा है अंग्रेज की औलाद, क्योंकि आपने हाउ आर यू बोला तो अंग्रेज की औलाद बोल देगा आपको कि भाई सीधा सीधा गुजराती में बोलना। और हमारे कॉलेज में जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे वो इंग्लिश भी गुजराती में सिखाते थे। मतलब वो अगर इंग्लिश में सीधा बात करे किसको बोलना नहीं पड़ेगा, तो वो इंग्लिश बोलेगा फिर उसको गुजराती में बोलेगा, तभी उसको गुजराती स्टाइल। तो इंग्लिश का जो स्टाइल है वो साउथ इंडियन बोलेंगे तो इंग्लिश समझ में आएगा, सिंधी बोलेगा तो अलग इंग्लिश टोन है, गुजराती लोग बोलेंगे आओ स्नैक्स तैयार है, तो वो दूसरे को अलग। अब ये आर सिंह पूरा उसका स्टाइल अलग, वो यूपी का स्टाइल है। ही स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग विनय व्यास। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कौन, राजू सुब्रमण्यम, he is also advocate, this guy is also advocate, and this guy started, प्रेसिडेंट को आउटगोइंग को थैंक्स ये वो करके फिर बोलता है it gives me great pleasure to introduce you today's assistant governor who is a junior lawyer. इतना बोला तब तक। And in terms, I am going to request him to introduce the bigger liar. वो राजू सुब्रमण्यम एकदम देख रहा है, बाद में उसने पूरे टॉक में लॉयर को लाया, उसका स्टाइल ही ऐसा था, वो समझ गया, नहीं तो बहुत लफड़ा होता। पर एकदम फैक्ट है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इधर बहुत फैक्ट है। उल्लास कोलटकर डॉक्टर 2007 में जब प्रेसिडेंट थे, 2007-8 गवर्नर थे, और उसके बाद में राजू सुब्रमण्यम का नॉमिनेशन हुआ था बंसी के बाद में मेरे ख्याल से। तो अब जब गवर्नर नॉमिनेट हो जाता है ना, उसके बाद उसका पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। मतलब आप नॉमिनेट हो उसका 2 दिन पहले आप उसको मिलो और 2 दिन के बाद में उसका थोड़ा चेंज, एकदम पावर आ जाता है। वो रात को नींद में सोचता है कि मैं मेरा फर्स्ट फेलिसिटेशन में कौन से कलर का सूट पहनूंगा, फर्स्ट इंस्टॉलेशन में क्या पहनूंगा, तो पूरा प्लानिंग चालू हो जाता है वहां से। उनको क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, फिर जो आउटगोइंग जो जाने वाले हैं उनको जाके मस्ती करते हो। वो राजू सुब्रमण्यम जाके उल्लास को पूछता है, क्या उल्लास भाई ओसीबी चालू है उसका, क्या उल्लास सब ठीक चल रहा है, मतलब उसको एक्चुअली सीखने का था क्या हो रहा है ओसीबी में क्या होता है। उल्लास तो बेचारा सीधा साधा आदमी है यार एकदम, तो उल्लास बोलता है सब ओसीबी वैसे तो राजू ठीक हो रहा है, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, आई नीड योर एडवाइस। क्या प्रॉब्लम होता है, वो क्या होता है जब से वो गवर्नर नॉमिनी होता है, फिर उनका इंट्रोडक्शन तो हर एक फंक्शन में होता है चीफ गेस्ट करके, तो लोगों को पता चल जाता है कि आदमी कौन है। बोलता है मैं इतना इंस्टॉलेशन किया तो सबको मालूम पड़ गया, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मेरा हॉस्पिटल है बड़ा, और टीवी पे भी आता हूँ, बहुत सारे बुक्स लिखे। बोलते हैं मैं ओसीबी में जब भी जाता हूँ, ओसीबी में देखना आपको ओसीबी हुआ के मालूम नहीं, लेकिन गवर्नर आते हैं तो एक सीनियर सिटीजन के लिए अलग उनका एक क्लोजर मीटिंग होता है, इनर व्हील का अलग मीटिंग होता है, रोड ट्रैक्टर के साथ में अलग मिलते हैं। तो बोलता है ओसीबी में जब भी गया ना तो वो इनर व्हील के मेंबर यार बच्चों को लेके आ जाते हैं, डॉक्टर साहब देखो ना जरा इसको 30 दिन से बुखार है। बोले यार अभी क्या करने का इसको, मतलब कोई लोग बोलते रिपोर्ट लेके आते हैं कि आप देखो जरा ये उसको कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो बोलता है थोड़ा अजीब लगता है। तो राजू सुब्रमण्यम वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बोले बॉस दिस इज नॉट डन यार, व्हाई आर यू डूइंग दिस, बोलता है आई नेवर मिक्स बिजनेस विद रोटरी, बोलता है आई एम अ प्रोफेशनल गाय, बोलता है यू सेड तुम्हारे पास लिस्ट है ना, उसको बिल बेचो, बोलता है। तो ये बेचारा सीधा आदमी रात को गया, उसको भी नींद आया। वो दूसरे दिन हॉस्पिटल में गया, वो उसके सेक्रेटरी को बुलाया, प्लानर निकाला डिस्ट्रिक्ट का, कौन सी क्लब में उसको याद था किधर किधर ऐसा हुआ था, बोला ये सब प्रेसिडेंट को अपने को बिल भेजने का। वो सब डिस्कशन कर रहे हैं, उतने में उसका प्यून आया एक एनवलप लेके, कुरियर खुला तो उसमें राजू सुब्रमण्यम का बिल था।
इंस्टॉलेशन में बहुत सारी घटनाएं घटती है और खास करके प्रेसिडेंट आपका अभी नेक्स्ट ईयर कौन है प्रेसिडेंट? राजू पाटिल, अभी उसका प्रीपेड्स बाकी। प्रीपेड्स में जाके आता है ना प्रेसिडेंट, उसके बाद में बदल जाता है पूरा। तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया। कुछ क्लब में आज ऐसा प्रॉब्लम है रोटरी में कि बहुत सारे मेंबर्स है, बॉम्बे क्लब जैसे जहाँ पे 300 350 मेंबर है, वहाँ पे किसको प्रेसिडेंट बनना है तो 10 साल के पहले आपको वेटिंग में बैठना पड़ेगा। और कुछ अपने दानों या थाना वाना में नया क्लब बनता है तो प्रेसिडेंट ढूंढना पड़ता है। जो आदमी ने 3-4 प्रोजेक्ट अच्छे कर ले उसको उठा के प्रेसिडेंट बना दे। तो वेरी गुड होता है, वेरी गुड। तो कभी कभी रोटरी में ज्यादा रिकॉग्निशन मिला तो समझना कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो कोई तो क्लब ऐसी होती है जिसमें ज्यादा करके डायरेक्टरी बनती है। तो मैं अभी देखा आपके सेक्रेटरी साहब, मैं तो खुश हो गया। मैं बोला यार बहुत लकी आदमी हूँ, बोरेली जैसी क्लब में 3 साल में सेक्रेटरी बन गया, बहुत बढ़िया बात है। तो ये डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में पहले से आपको अभी डिस्ट्रिक्ट आपका दिसंबर में जो एजीएम आएगा आपको नेक्स्ट ईयर के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लिस्ट भेजना पड़ता है। 8-10 क्लब ऐसे होते हैं जिन्होंने नाम भेजने के बाद लास्ट मोमेंट पे कैंसिल होता है कोई प्रेसिडेंट। किसी का मूड खराब होता है, किसी के साथ कुछ पंगा हो जाता है, बोले नहीं अभी मैं नहीं बनूंगा, अभी तुमको जो करना है करो, ऐसा करके भी जाता है। किसी का ट्रांसफर हो जाता है, तो बहुत सारे इश्यू आते हैं। तो फिर लास्ट मोमेंट में पास्ट प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि अभी अपन किसको प्रेसिडेंट बनाए। तो उसमें फिर नजर जब दौड़ती है कि चुना मेंबर कौन है जो 8-10 साल से है। तो बाद में उसको मीटिंग में बुलाते, बोलता है नहीं यार अपना तो काम नहीं, बिजनेस में टाइम है ये वो, पर कैसा भी करके बनाना तो है किसको भी। उसको बिठा के बोले यार तू 8-10 साल से है, तेरे को सब लोग जानते हैं, भले तू सेक्रेटरी नहीं बना, भले तू बोर्ड में एक बार रहा, लेकिन हम लोग सब है, तू टेंशन मत ले, सब एक ही कैबिनेट में हम तुम्हारे पीछे है, हम तुम्हारे पीछे, तुम आगे जाओ। तो ऐसा करके उसको पुश करते। अब ये बंदा प्रेसिडेंट बन गया, उसको प्रीपेड्स में भेजते। अब इसकी मेंटालिटी देखो, मैंने जैसे पहले कहा जब तक प्रेसिडेंट नहीं बनेगा रोटी समझ में नहीं आती। अब ये बंदा, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक्चुअल बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की बात है। रोटरी में जाता था, उसको फेलोशिप के लिए रोटरी में गया था। शाम को जब मेंबर मीटिंग खत्म होने के बाद ड्रिंक लेने को जाते थे तो उसको मजा आता था, बोले रोटरी अच्छा है। अच्छा वो बीवी भी बोलती नहीं थी, बोले किधर जाके है, रोटरी में जाके है, तो टेंशन नहीं उसको। तो ये बंदा तभी ड्रिंक लेके ड्रिंक एंड ड्राइव कर, तभी तो वो प्रॉब्लम नहीं था, तो अपना खुद का गाड़ी चला के रात को 12 बजे घर पे पहुंचता था। ये सीन देखना बराबर, आप ध्यान से देखना। 12 बजे पहुंचता था, वो गेट बंद रहता, वो वहां जाके टै 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 करके हॉर्न मारता था। 3-4 मिनट तक हॉर्न मार रहा है, उधर कोई आदमी दिखता नहीं। बाद में भागते भागते वो उसका वॉचमैन बेचारा आके गेट खोलता है टेंशन में, और जैसे गेट खुलता है ये आदमी गाड़ी अंदर घुसा के कांच नीचे लेके उसको बराबर के बजा था। मतलब वो उसको पूछता है, बोला किधर गया था, बोला साहब मैं पानी चढ़ाने को गया। अरे उसको तो पूरा जितना भी था वो सब उसको दे देता राम। ये आदमी रोटरी में था, लेकिन दिस वाज हिज एटीट्यूड। दूसरे दिन वो लिफ्ट में जाता था, तो लिफ्ट में जनरली एक स्टूल रहता है, आदमी 50-55 साल का होगा, बैठा होगा स्टूल पे, उसको भी खड़ा करता। क्या करता है रे, अरे स्टूल के ऊपर बैठने का पगार लेता है क्या, ये तो 4 आदमी खड़ा नहीं रह सकते, निकाल इसको। उसको जिधर देखो उसका एटीट्यूड ऐसा था। बट रोटरी में था। पत्नी ने उसको बोल दिया कि अपनी भाई के लड़के को स्कूल में एडमिशन के लिए 10,000 रुपए डोनेशन चाहिए। 10,000 रुपए, उसका पगार कितना है, बोले 600 रुपए पगार, तू 10,000 रुपए देगी, परसों भाग जाएगी, वो गाँव चली जाएगी, अक्कल है कि नहीं तुमको। दिस वाज द एटीट्यूड, दो ही बंदे रोटे थे। अब ये बंदे को अचानक मतलब क्राइसिस आने की वजह से क्लब वाले ने फोर्स करके प्रेसिडेंट। अब ये जाता है प्रीपेड्स। अब प्रीपेड्स जो है वो बहुत अच्छी चीज है, मतलब रोटरी के प्रेसिडेंट के लिए। वो जाएगा तो उधर से उसको बहुत सारी एनर्जी मिलती है पूरे साल के लिए। वहां पे 3 दिन क्या होता है सर, महाबलेश्वर जैसे जगह में आपको 120-125 सब क्लब के प्रेसिडेंट है। और मुझे ऐसा लगता है स्कूल में हम लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, फर्स्ट डे
अपन अपने दिमाग से चलते हैं कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, फिर स्कूल में जाके देखते हैं एक स्कॉलर को देख के हवा निकल जाती है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो प्रीपेड में भी ऐसा होता है, सब लोग अपने अपने ख्याल से आते हैं कि मेरा क्लब सबसे अच्छा है डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग 5-10 लाख के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उधर को एक बंदा खड़ा होकर बोलता है मेरा क्लब ने लास्ट ईयर 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट किया, तो उनको चुप तो वहां पे गया वो 3 दिन, ये रोटेरियन, उसको वहां पे सर लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी सर्विस, वोकेशनल सर्विस, रोटरी फाउंडेशन, लीडर आपका कम्युनिकेशन स्किल, दुनिया भर का वाटर मैनेजमेंट, सोलर पावर, सब चीज सिखाया उसको 3 दिन में, और एकदम माथा उसका भारी हो गया। तो ये क्या है, ये रोटरी है, मतलब उसको तब तक रोटरी 10 साल में कुछ समझ में नहीं आया। ये बंदा वापस आया प्रीपेड्स में जाके, अब यही बंदा वापस वो एक्सटेंडेड फेलोशिप करके ड्रिंक करके वही गाड़ी लेके वापस 12 बजे बैठता है, वही गेट है, वही वॉचमैन। सीन कैसा बदलता है देखो, वो गेट पे जाके जैसा हॉर्न मारने को जाता है ना, उसको याद आता है प्रेसिडेंट है। नो हॉकिंग, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर 1.5 घंटे का लेक्चर सुना। सबसे अच्छी चीज प्रेसिडेंटशिप में अगर आती है ना, तो 2 क्वालिटी आती है, 2 वैल्यूज which is one of the best values if you can keep it. एक है टॉलरेंस और दूसरा है पेशेंस। प्रेसिडेंट बनेगा, दूसरा कुछ फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन ये 2 चीज उसको समझ में आती है। वो रुक जाता है, नो हॉकिंग, ग्लोबल वार्मिंग, सब उसको लेक्चर याद आ गया होता है। थोड़े टाइम में आराम से बैठा है वो, थोड़े टाइम में वो वॉचमैन आता है, वही वॉचमैन है, भागते भागते उसको टेंशन है कि आज में वापस गाले खाने का। वो दरवाजा खोलता है, ये बंदा आराम से उससे कुछ बात किए बिना क्लास भी नहीं हो जाता है, अपना गाड़ी पार्किंग तक लेके जाता है। अब वो वॉचमैन को टेंशन की कुछ क्या हो गया, वापस चल के आ रहा है, वॉचमैन गया, बोला आज तो मतलब कुछ लफड़ा होने वाला है, तो वापस वो वॉचमैन के कंधे पे हाथ रख के बोलता है क्या रे राम सिंह कैसा है। वो सरप्राइज हो गया, बोले क्या हो गया इसको, बोले सर ठीक है, किधर गया था, सर पानी चल, अरे राम सिंह तुम क्या काम कर रहे हो। उसका मतलब बोलता है राम सिंह तुझे मालूम नहीं है तुम क्या कर रहे हो, बोलता है पानी तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो, बोलता है। उसने जो वाटर मैनेजमेंट का प्रीपेड में लेक्चर सुना था ना, पूरा उसको ढोक दिया। मतलब वो उसको बेचारे को ऑल्टरनेट नहीं था, वो ऐसे टेंशन में देख रहा है कि आदमी क्या बात कर रहा है, वो उसको सब सुना रहा है, वाटर का पूरा कैलकुलेशन दे दिया, पूरे दुनिया में कितना परसेंटेज पानी है, कौन सा पानी पीने लायक है, जितना सुना था सब बोल। और लास्ट में यहाँ तक बोल दिया कि राम सिंह अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो पानी की वजह से होगा, और मैं तो यहाँ तक बोलूंगा अगर सर्विस अबाउट किसी को देना चाहिए तो तुमको देना चाहिए। दूसरे दिन जाता है यही बंदा प्रीपेड में जाके आया, इतना फर्क पड़ गया। वापिस वो लिफ्ट में जाता है, वो बेचारा टेंशन में खड़ा हो जाता है, बोलता है अरे तू क्या कर रहा है, बोलता है स्टूल किधर है, उसको टेंशन हो गया, बोले एक स्टूल तो मेरे को निकल आया था यार, बोले देख खाली पीक आवर में 1 घंटा रखने का बाहर, बाकी पूरा दिन क्या कितना पब्लिक आता है, एक ही तो आदमी आता है, बोलता है आराम से स्टूल पे बैठने का। अभी तुमको अगर पाँव में प्रॉब्लम है वो ऑस्टियोपेरासिस हो जाएगा, अभी वो उधर मेडिकल कैंप का सोच लिया खड़े खड़े होता है। फिर उसको पूछ लेता है कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, बोले 3, देख 5 साल का नीचे का होगा, 22 दिसंबर को पोलियो का टीका लगाना। इतना नॉलेज बढ़ गया, कितना फर्क हो गया प्रीपेड में जाके आने के बाद। पत्नी के पास जाता है, पत्नी उसको बोलती है 10,000 रुपया हो, तो बोलता है 10,000 रुपए में कौन सा स्कूल में म्युनिसिपलिटी में एडमिशन नहीं मिलता है, बोलता है रुस्तम जी में दो, 25,000 रुपए डोनेशन दो, वो अच्छी स्कूल में दे दो, बोलता है। अब ये इतना फर्क उसका एटीट्यूड के अंदर चेंज आया। इंसुलेशन की बात कर रहा हूँ, जब इंसुलेशन होता है तो बहुत सारी, आजकल हम लोग फ्लावर को, ये चॉकलेट आ गया कुछ मीठा हो जाए, एक्चुअली फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई डोंट नो, आई एम विद द फ्लावर, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो, और धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब वक्त बदलता है, हम लोग टेक्नोलॉजी में आ गए। तो मैंने रिसर्च किया था कि फ्लावर का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि हर एक आप इंसुलेशन में देखेंगे तो इंसुलेशन में तो रहेगा फ्लावर, आप देखना। अब प्रीपेड्स में एक ग्रुप होता है सब प्रेसिडेंट का, और वो लोग अपने अपने ग्रुप को बोलते हैं कमिटमेंट के हम लोग अपने इंस्टॉलेशन में जरूर पहुंचेंगे, होता है कि नहीं? आपके ग्रुप के सारे प्रेसिडेंट आपके इंस्टॉलेशन में थे। अब जून जुलाई में इंस्टॉलेशन चालू होता है, एक बंदा डोंबिवली से बोरेली आता है, बोरेली वाला दानू जाता है,
बारिश का टाइम रहता है तो कभी कभी 2 घंटा लगता है पहुंचने को, और ये प्रेसिडेंट सुबह में सब उसके ग्रुप वाले को सबको फोन करता है, देखो तू नहीं आया तो इंस्टॉलेशन होएगा नहीं, अपना ऐसा करके दम मारता है इसको। तो सब लोग बेचारे दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं वहां पे। अब इंस्टॉलेशन में ये कि सब क्लब के फैमिली मेंबर है, प्रेसिडेंट की फैमिली है, और स्कूल के टीचर्स है, पुलिस स्टेशन है, सारे लोग हैं। मतलब ये खास आप ध्यान से देखना, नेक्स्ट टाइम जिसने इंस्टॉलेशन नहीं देखा मुझे याद करना, आप देखना कि जितने जितने लोगों को आपने फ्लोरल रिकॉग्निशन दिया है, और ये जो डोंबिवली वाला है उसको इतने लोगों के बीच में जब उसका नाम देता है प्रेसिडेंट, अरे माय कलीग, यू नो वी हैड अ ग्रेट टाइम एट प्रीपेड्स, वो ग्रुप का भी नाम होता है, कोई मस्ती ग्रुप होता है, कोई कौन सा ग्रुप होता है, उसको फ्लावर मिलता है ना, वो 1.5-2 घंटे उधर से ट्रैवलिंग करता है ना, पूरा थकान निकल जाता है उसको एक फ्लावर में पढ़ाई करके। इतने लोगों के सामने उसका नाम बोला, प्रेसिडेंट ने एक्नॉलेज किया, और जितने लोग फ्लोरल रिकॉग्निशन में जिनको जिनको मिलता है, आप ध्यान से देखना नेक्स्ट टाइम, वो सारे लोग कुर्सी पे चिपक जाते हैं जब तक आपका वोट ऑफ थैंक्स नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गलती से अगर समझो किसी को फ्लावर नहीं मिला तो क्या होता है, वो आपको सुनता ही नहीं है। बॉस डिस्ट्रिक्ट का एक बंदा चीफ कोऑर्डिनेटर, ये 4-5 साल पहले की बात है, और रोटरी वाले को बहुत दुख होता है, बाहर के लोगों को तो उतना दुख नहीं होता है बिकॉज उनको सिस्टम मालूम नहीं, प्रोटोकॉल। अब ये चीफ कोऑर्डिनेटर मतलब प्रोटोकॉल से आते हैं, पहले आपके गवर्नर आएंगे, फिर फर्स्ट लेडी आएगी, फिर आपके पास गवर्नर अगर कोई है वहां पे तो फिर असिस्टेंट गवर्नर आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम आती है, सबका फ्लोरल रिकॉग्निशन होता है। अब मैंने उस दिन देखा कि सारे क्लब का रिकॉग्निशन हो गया, जितने लोग बैठे थे, मैं भी छोटा मोटा चेयरमैन था, मेरा भी फ्लोरल हो गया, हम लोग ऐसे जैसे विनय और दोनों बैठे ना, बराबर सामने बैठे। अब पता नहीं वो बंदा रह गया, अब रह गया तो वो घड़ी घड़ी ऐसा भाव कर रहा है, दिखा रहा है उसको कि मैं रह गया हूँ, और मुझे मस्ती में बोला बॉस तेरे को फ्लावर नहीं दिया अभी उसको और फील हो रहा है, और वो घड़ी घड़ी इधर उधर हो रहा था। मैं बोला बॉस, बोलता नहीं ठीक है, मैं बोला नहीं ठीक नहीं है, तू घड़ी घड़ी इधर उधर हो रहा है, अभी तू सुन नहीं रहा है कुछ। तो मैंने वो कागज मांगा कि चिट्ठी भेजा वो प्रेसिडेंट को, और उसने फटाक से माइक लेके सॉरी फॉर गुफ अप ऐसा करके उसको जैसा फ्लावर दिया और जो बनाटे मारा ना, वोटर थैंक्स तक ऐसा है। ये फैक्ट है। अब उसका प्रॉब्लम क्या होता है प्रेसिडेंट का, आप मेंटालिटी सोचो वो टाइम पे क्या हो रहा है प्रेसिडेंट का। इंस्टॉलेशन में आउटगोइंग प्रेसिडेंट है और इनकमिंग प्रेसिडेंट है। अब जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो पहले बात करता है, जब प्रोग्राम शुरू होता है तो पहले फ्लोरल रिकॉग्निशन होता है, फिर आउटगोइंग प्रेसिडेंट बात करता है। अब ये जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली सामने बैठा था, वो देख रहा है ऑडियंस की तरफ, उसको लगता है मेरे को देख रहा है क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग तो उसका स्पीच तैयार हो रहा है। उसको एक्चुअली सामने कुछ नहीं दिखता। ये आप मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बिकॉज़ मैं भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। वो इनकमिंग प्रेसिडेंट जब तक उसका स्पीच खत्म नहीं करता है ना, तब तक उसको कुछ भी नहीं दिखता, एक्सेप्ट उसको खास जो उनके 1-2 मेन लोग आ गए ना, फिर उसका दिमाग वही पहले मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बोलूं या पहले मैं प्रेसिडेंट बोलूं, क्या बोलूं वही चक्कर में। और अच्छा उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि अगर उसने लिख के रटा मारा है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, बाद में फर्स्ट लेडी, और फर्स्ट लेडी आई नहीं है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, और वो दिमाग में कभी कभी कैंसिल नहीं भी होता है। आई हैव सीन प्रेसिडेंट लोग बोल देते हैं जो जैसा सोचा है वैसा ही बोलता है, सामने कोई है नहीं बोलता। तो ये एक बड़ी दिक्कत होती है, उसको ऐसा लगता है ये आदमी मेरे को सामने दिखता है लेकिन वो एक्चुअली किसको देखता है। और मजा ये भी आता है सर इंस्टॉलेशन में खास से देखना, उसमें 2 पार्ट रहते हैं। पहले आउटगोइंग प्रेसिडेंट पूरे साल में क्या किया, रिकॉग्निशन अवार्ड देता है, तब तक वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट छाया रहता है ऑडियंस में, और जैसे इंस्टॉलेशन होके इनकमिंग प्रेसिडेंट आ गया उधर, उसके बाद आपको वॉच करना है आउटगोइंग प्रेसिडेंट को। वो आके बैठेगा डायस पे, अभी वो खाली हो गया, मेंटली वो कंप्लीट खाली हो गया, वो आके ऐसा बैठता है, पूरा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पावर निकल गया उसका बॉडी से, वो बैठ के देखेगा इधर उधर,
और वो एक्चुअली कुछ काम नहीं करता है, वो इनकमिंग प्रेसिडेंट क्या बोलता है वो आधा सुनता भी नहीं। वो ऑडियंस में देखता है, हाँ हेमंत भाई है ना, मेरे टाइम पे तो बहुत लेट आया था। अच्छा, फिर अनाउंस होता है चेतन बिकम मेजर डॉलर, हाँ मेरे टाइम पे $100 देने को बोला था। वो डायरेक्टर बोलता है इसके पहले कभी क्लब में दिखा नहीं, इसको डायरेक्ट। फिर मेंबरशिप इंडक्शन होता है, हाँ मेंबरशिप इंडक्शन होता है, तो वो पास्ट प्रेसिडेंट बोलता है टुडे वी आर गोइंग टू इंडक्ट 20 न्यू मेंबर्स, और उसमें 3-4 मेंबर ऐसे जिसको इसने नहीं देखा है पहले। तो मेरे टाइम पे साला सब लोग बोलते थे एटलीस्ट 3 मीटिंग तो होना बनता है। मेरे को लगता नहीं कि जून के बाद दिखेगा, वो खुद ही बोलता है अंदर अंदर। अब वो फ्री हो जाता है, वो ज्यादा करके ना जो नए मेंबर का इंडक्शन होता है या किसी को अवार्ड देना है तो वो गवर्नर को हेल्प करता है, एक पिन देता है या कुछ देने का है, उसका वही काम आप देख लेना। और वो बैठे बैठे वो गवर्नर को डिस्टर्ब करेगा, कुछ काम नहीं। मेरे टाइम पे मैंने ये किया और वो गवर्नर को इंटरेस्ट नहीं, तूने क्या किया, मेरे को मेरा प्रेसिडेंट देखने का। गवर्नर का भी ये प्रॉब्लम है वापिस, वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा काम भी किया होगा तो 2 लाइन में बोल देगा व्हाट अ ग्रेट वर्क डन बाय प्रेसिडेंट, आउटस्टैंडिंग, ऐसा करके खत्म। फिर अपने प्रेसिडेंट की लाल करेगा। मेरे साथ एक्चुअली अक्सर बहुत सारी ऐसी ओरिजिनल घटनाएं घटी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उल्लासनगर क्लब, कोई क्लब का इंस्टॉलेशन है ना बहुत टाइमली होता है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज होता है, मतलब 1.5 घंटे में इंस्टॉलेशन खत्म। और अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ क्लब के रिकॉर्ड है कि वो लोग का इंस्टॉलेशन का जो स्टार्टिंग है वो आज होता है और उसका वोट ऑफ थैंक्स दूसरे दिन होता है। तो ऐसे 3-4 क्लब है कि 28 का शाम का 8 बजे का टाइम है और 29 को 1 बजे उसका मतलब वोट ऑफ थैंक्स होता है। बंसी धुरंधर उस उल्लासनगर की क्लब है वो ऐसी, तो उधर अभी गवर्नर लोग जाने को भी डरते हैं कि इधर जाने का ये लोग का टाइम का कोई भरोसा, स्टार्टिंग तो थोड़ा आगे पीछे हो बट कंप्लीट कभी होगा मालूम नहीं। बंसी धुरंधर को इन्विटेशन आया कि अरे यार बंसी भाई आपको हमारे उधर आना है चीफ गेस्ट, वो तो अभी पीडीजी है। बोले नहीं यार वो उल्लासनगर बहुत, नहीं यार ऐसा कैसा, हमारा क्लब का सारा मेंबर हम लोग तो, मैं जब पहले प्रेसिडेंट नॉमिनी हुआ ना मैंने कि यार मेरा टाइम पे इंस्टॉलेशन पे बंसी धुरंधर ही आएगा। वो आदमी इतना उसको पीछे पड़ता है ना, तो पीडीजी बेचारा ना, वो बोले नहीं यार बहुत लेट, अरे हम तुमको गारंटी देता है 8:01 भी हुआ ना चालू करने को तुम चला जाना, बस इससे ज्यादा क्या बोलेगा बोलते, ऐसा इतना उसको डरा है। बंसी बोला चलो ठीक है आता हूँ, पहुंच गया बंसी उधर 7:30 बजे। 8 बजे का टाइम, हॉल पूरा भरा हुआ है, 300-350 लोग हैं और लोग आ रहे हैं। बंसी ने देखा है कमाल होता है, तो आश्चर्य हो गया होता है, और उसने 8 बजे भरा और मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। बंसी तो खुश हो गया, उसको बोलता है वेरी गुड, आज तक मैंने ऐसा सुना था उल्लासनगर तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। मीटिंग चालू हुआ उधर और आउटगोइंग प्रेसिडेंट का स्पीच चालू हुआ। हमारे टाइम पे बहुत सारे लोगों ने हमको मदद की, ऐसा करके उसने एक उधर का जितना मतलब निकला पूरा निकाला उधर से, बैग लेके आया एक आदमी, वो बैग के अंदर ऐसा 26 शॉल था, शॉल नारियल उतना लेके आया। तो वो सोच रहे बच्चे बोले क्या हो रहा है, उसने पूरे साल में जितने ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडिविजुअल दूसरा कोई आदमी ने 5000 रुपया भी डोनेशन किया तो उसको भी बुला लिया रिकॉग्निशन करने को। हम पूरा सबको शुक्रिया कम सब साथ में था समझो। तो 8 बजे चालू हुआ फंक्शन, 10 बजे तक वो आदमी का रिकॉग्निशन चालू है, चप्पल एसोसिएशन वाला आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन वाला आ रहा है, सबको साथ पहना रहा है। उतने में करके तकरीबन 11:15 बजे उसका इंस्टॉलेशन हुआ प्रेसिडेंट का। और अभी वो प्रेसिडेंट बात करने को जाता है, तब तक ऑडियंस में से वो एक मेंबर का चिट्ठी आता है, चिट्ठी में लिखा है 11:15 बज गए, मीटिंग चालू करें क्या? तो उसने बंसी देख रहे हो, अभी तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट आके बैठ गया ना, उसने यस करके भेज दिया। जैसा यस करके भेजा तो 150 लोग निकल गए उसके। अभी उसने उसका स्पीच चालू किया, उसने भी वापस जो आने वाले क्योंकि वो सब ऑर्गेनाइजेशन अभी हम कोशिश करेगा, लास्ट टाइम हमारा
इलेक्ट्रॉनिक वाला एसोसिएशन ने हमको बहुत मेहनत किया। आज हमारा उसका प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट को बुलाया, उसको वापस सवाल दिया, वो प्रेसिडेंट आके 2 मिनट बात करता है। ऐसा रोटरी से हमारा बहुत जुड़ा रिश्ता है, लेकिन हम लोग उसको, हमारा गवर्नर इधर आया है, उनका हम स्वागत करता है, उसका सेक्रेटरी वो हार लेके आता है, गवर्नर को हार पहनाता है। अब वो आपको ऐसा कमिटमेंट देता है, हमारी तरफ से जो भी तन मन धन से होएगा रोटरी के साथ हम खड़ा रहेंगे। ऐसा करके हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे स्कूल वाले सब 2-2 मिनट 3-3 मिनट बात करते हैं। वापिस 11:30 पौने 12 हो गया, दूसरा चिट्ठी आया, तब तक उसको अभी भी चालू है प्रेसिडेंट का। दूसरा चिट्ठी आया, चिट्ठी में लिखा है बच्चे और लेडीज लोगों को भूख लगा है, खाना चालू करे क्या? तो उसने यस करके भेजा, सामने 15 आदमी रह गए, सब लोग खाना खाए। अभी 15 आदमी रह गया और बंसी को टेंशन हो गया। 12:15 बजे वो बंसी का इंट्रोडक्शन चालू है, जितने 8 लोग उधर डायस पे बैठे और सामने 12 लोग बैठे। तो बंसी का जैसा 12:15 बजे टाइम आया, बंसी बोला, एक तो आप सोचो कि 4:15 बजे से 4 घंटा आपको इधर डायस पे कुर्सी पे बैठना है, आदमी कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बंसी बोला मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया है, तो ग्रेट कांग्रेचुलेशन। अरे ऐसा कैसा चलेगा यार बंसी जी, वो माइक लेके बोलते आप ऐसा बड़ा आदमी को मत देखो यार। उधर सामने वीडियो देखा है, लाइव केबल पे कपड़े 6,500 का खर्चा किया है, 50,000 लोग उल्लासनगर में। आप जितना स्पीच तैयार करके आए, पूरा बोलो। पूरा लाइव कवरेज हो रहा है, बोलते केबल का 6,500 में खर्चा किया है, 50,000 लोग देखेगा। मतलब उल्लासनगर वाले सोए नहीं, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे अंदर वो हंसने की एक नजर चाहिए एक्चुअली। इंसुलेशन में तो इतने सारे रोटरी की अच्छी चीज है कि आप कुछ भी, जैसे मुझे मौका मिला है, मैं कुछ भी बोलूंगा, आप लोग अपने कुछ ऐसा थोड़ा बोलेगा क्या पका रहा है आदमी, कितना टाइम ले बोलेगा, तो उसका नसीब अपन क्या कर सकते लेकिन हर एक चीज को एक मौका मिलता है। इंसुलेशन में आपके इनोकेशन होता है। इनोकेशन तो बहुत अच्छी चीज है, और ज्यादा करके या तो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या कोई एडवाइजर होगा, पास प्रेसिडेंट, उनके फैमिली से कोई ना कोई रहता है। और रोटरी में आपको विलिंगनेस होगी ना, तो आपको सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको चाहे वो चीज आती है नहीं आती है, लेकिन दूसरा कोई नहीं है करके प्रेसिडेंट बोला, अच्छा तू बोला, तू डायरेक्टर तू उसको एक अभी जैसे बोला ना, कोई मिलता ही नहीं आदमी लोग भाई, सुबह से शाम तक प्रेसिडेंट ही घूम रहा है। कोई मेंबर आके खाली इतना बोले, अरे हाँ चल तेरे को, वो छोड़ के जाएगा उसको, बोले स्कूल में अभी नहीं, लीफलेट तू बांटना बेटा। आदमी चाहिए उनको। इनोवेशन एक क्लब में मैं गया, अभी लाइफ में देखना 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक जो है वो रिएक्ट करते हैं और दूसरे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब रिएक्ट कैसे होता है कि कुछ भी होता है तो फटाक से वो आदमी सोचता नहीं है, फटाक से रिएक्शन देता है। और रिस्पॉन्ड है वो आदमी सोच समझ के कोई भी चीज बोलता है। तो कुछ लोग हैं रोटेरियन में ऐसे, कुछ भी होता है तो फटाक से किसी ने बोला ऐसा हो गया, ऐसा थोड़ा होता है, विदाउट थिंकिंग सेकंड थॉट इमीडिएटली रिएक्ट करता है। अब मैं उस क्लब में पहली बार गया था और मेरे बाजू में यही रोटरी का बड़ा सीनियर रोटेरियन था डिस्ट्रिक्ट में, बहुत रिएक्टिव आदमी। और जैसे इनोवेशन चालू हुआ इंस्टॉलेशन में, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, और जैसे आवाज चालू हुई, वो लेडी की आवाज भी भारी भरकम थी। जैसा फर्स्ट मतलब आवाज निकला और मेरे बाजू में बंदा रिएक्ट किया, उसने फटाक से ऐसा रिएक्शन दिया है ना, पूरा ऑडियंस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। व्हाट अ हॉरिबल वॉइस यार। I was feeling very uncomfortable sitting next to him. but अभी अपन क्या कर सकते हैं? अच्छा वहां से रुका नहीं, इनोवेशन चालू है, मेरे को पूछता है मैं बोला यार मैं तो फर्स्ट टाइम आया एक क्लब में, मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे बाजू में, उसके बाजू में जो बंदा बैठा है ना, वो लोकल रोटेरियन में आया, तभी बैनर लगा रहा। अब उसने भी सुना इसने क्या बोला, इनोवेशन चालू, इससे रहा नहीं गया, उसने बाजू वाले को ऐसा करके उसको पूछा, Who is she? She is my wife यार। अब कलाकारी तो है, डिस्ट्रिक्ट में तो कलाकारी तो है, ऐसा फटाक से पलटी मारा, What a voice! Beautiful book. You know problem is lyrics. Horrible lyrics. She is singing
beautifully. What a throat! What a throat! मैं बोला आज हेल्थ बचा लिया इसने, खत्म हो गया और प्रेसिडेंट बोलता है कि रिक्वेस्ट गवर्नर टू रिकॉग्नाइज दिस लेडी फॉर वंडरफुल। बाय द टाइम दैट लेडी कम्स, वो प्रेसिडेंट को अचानक याद आया, उसने वापस माइक लेके बोला है, let me tell you friends, though she sung very nicely, but the real person who should be recognized is his husband, her husband, who has actually written this song. और by the time वो husband वापस आता, वो बंदा सही में निकल गया, आज बनता था। मुझे एक्चुअली 8-10 साल पहले रोटरी में कोई स्पीकर करके नहीं बोला था, तो मुझे 5-6 साल पहले एक आइडिया आया कि मुझे मालूम था मैं अच्छा बोलता हूँ, लेकिन लोगों को नहीं मालूम था। तो प्रीपेड्स पे वो गोपाल बंदा ने एक रोटरी स्पीकर की डायरेक्टरी बना दिया। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने उनको बोला कि आप लिखो मेरा नाम और 3-4 टॉपिक दिए। तो उनको बोला कि खास आप नीचे स्टार करना हो, जैसे वो होम लोन्स में आता है ना, कंडीशन अप्लाई। तो स्टार में ऐसा लिखा कि क्लब प्रेसिडेंट के लिए सबसे बड़ा अगर टेंशन है ना, तो 52 मीटिंग के स्पीकर ऑर्गेनाइज कर, और वो खाली 52 मीटिंग के स्पीकर नहीं, स्पीकर भी ऐसे होने चाहिए कि ऑडियंस आए सामने, नहीं तो अटेंडेंस का प्रॉब्लम। और लास्ट मोमेंट में कभी कभी कोई स्पीकर कैंसिल होता है या लास्ट मोमेंट में कुछ ऑर्गेनाइज करना है, तो वो प्रेसिडेंट के लिए बहुत दिक्कत की बात होती है। तो मैंने सोचा कि पहले अपन रोटरी में तो सेवा दे, तो मैंने वो स्टार में लिखा कि कोई भी प्रेसिडेंट को लास्ट मोमेंट में कोई स्पीकर कैंसिल होता है या कोई नहीं मिलता है, तो मेरे को बुलाएगा तो मैं आके। तो एक तो क्या दिवाली वैकेशन होता है, और दूसरा होता है आपका वो मई जून, उसका ओसी भी खत्म होता है। जिसका मार्च अप्रैल में ओसी होता है ना, वो ऐसा लगता है कि उसी दिन आईपीपी बन जाता है। तो जून का जो टाइम रहता है, वो टाइम पे भी कोई अच्छे स्पीकर आते नहीं और सामने ऑडियंस भी नहीं रहता है। तो आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ इनविटेशन, क्योंकि सब प्रेसिडेंट को या तो किसको स्पीकर नहीं मिलता है। तो ऐसा करते करते जैसे बात करते गया, तो एक प्रेसिडेंट ने दूसरे प्रेसिडेंट को बोला, अभी तो क्या है व्हाट्सएप वगैरह हो गया, तो फोटो जाता है, कोई लिखता है अरे बहुत मजा आया, ऐसा ऐसा करके। तो आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ और अभी तो ऐसा ऐसा भी हो गया कि लोग 2 महीने पहले भी एडवांस में बुकिंग करते हैं। आज की बात अलग है, तो अपना घर का मामला है। लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द रोटरी। तो एक बार ऐसा हो गया कि वैसे सब में कुछ 15-16 क्लब का हार्मोनिक ग्रुप है, और उनका हर साल एनुअल एक डे होता है, बड़े फंक्शन होते हैं। तो गोपाल बंदा ने खुद उस दिन फंस गए, और उनका मुझे फोन आया कि विनोद भाई, मैं ऐसा हार्मोनी में चीफ गेस्ट करके बुलाया स्पीकर करके, मेरा गला बहुत खराब है, तो आप जा सकेंगे क्या? तो मैं बोला जरूर जाएंगे यार, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे लास्ट मोमेंट में काफी सारे लोग मुझे बुलाते थे, तो बहुत अच्छा लगता। महाबलेश्वर में प्रीपेड में ज्यादा करके जितने भी प्रेसिडेंट गए, साल रिसोर्ट में होता है, तो मैं भी 2-3 बार गया वहां पे प्रेसिडेंटशिप होने के बाद। तो पत्नी को लेके एक बार मैं पंचगिनी में जो टेबल टॉप है वहां पे वो पैराग्लाइडिंग होता है, आप लोगों ने किया है पता नहीं। अभी तो मैं भिवंडी में वो क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग में से वो वायर के ऊपर लटकता है, वो भी लटक गया है, थोड़ा लगा था मेरे को। बट रोटरी में ये सब अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मैं पत्नी के साथ बच्चों के साथ उधर गया था। तो बच्चे तो फटाक से कर लेते पैरासाइकिल, तो अपना अभी थोड़ा वेट है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम जब वो कोशिश किया तो गिरा पहली बार। तो फिर बच्चे कर रहे हैं, तो वाइफ बोलती नहीं वापस करो, दूसरा ट्राई करो। तो वापस दूसरी बार गया, तो भी वो बीच पे जाके वापस रुका। तो अब बच्चे कर रहे, तो बोले नहीं, अभी अपन एडवांस पैसा तो दिया, 1000 रुपए वसूल तो करना पड़ेगा, भले करो तीसरी बार। फाइनली तीसरी बार जब ऊपर गया, तो इट वाज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, दोज हु हैव नॉट डन, इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। तो गोपाल बंदा का फोन आया, तो मैं बोला गोपाल जी जाएंगे? तो बोले मैं हार्मोनी की क्लब प्रेसिडेंट को बोलता हूँ, आपको फोन करेंगे। तो बाद में मैं बोला लेकिन मुझे टॉपिक क्या है, कौन से टॉपिक पे बात करते हैं? तो बोले सेक्स एजुकेशन। मैं बोला सर मैं तो रियल एस्टेट वाला बंदा हूँ, आप रोटरी के बारे में कुछ भी बोलो, ये टॉपिक पे मैं क्या बात? बोले नहीं तेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तुम खाली ओपनिंग रिमार्क में जोक बोलना, कंक्लूडिंग में शायरी बोलना, बाकी प्रेजेंटेशन पढ़ लेना, तो बात खत्म बोलता है। मैं बोला तो देखो कुछ लफड़ा हुआ तो आपका जिम्मेदारी, मेरे को कोई
अब वो हार्मनी क्लब की प्रेसिडेंट का फोन आ गया, अब लास्ट मोमेंट में कैंसिल होता है तो प्रेसिडेंट लोग आपको बहुत मतलब यू नो, अरे थैंक यू वेरी मच, आपने तो लास्ट मोमेंट में हमको बचा लिया, नहीं तो क्या होता था ये वो ऐसा करके। मैं बोला डोंट वरी आई विल कम। तो बोले मीना जी को भी लेके आना, पत्नी को भी। तो मैं बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं घर पे पहुंचू उसके पहले उनका फोन पहुंच गया था उधर कि आपको ऐसा ऐसा आना है, हमारा बड़ा प्रोग्राम है। तो मैं गया तो मुझे उषा पत्नी को, पत्नी मेरी एक्चुअली आज मैं जो भी हूँ रोटरी में उसकी बदौलत हूँ, क्योंकि गुजराती में एक कहावत है, સૌથી મોટી कम्युनिटी सर्विस એ કે તમે કોઈને નડો માં। हाँ आप किसको बीच में मतलब ये तकलीफ मत दो, कोई आदमी कुछ करता है तो करने दो उसको। तो पत्नी मेरी रोटरी में जिधर जाना है कुछ भी काम करना है करने देती है। तो व्हाटएवर आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ हर। तो मैं घर पे जाके उसको बोला कि ऐसा ऐसा हार्मनी, बोले हाँ प्रेसिडेंट का फोन आया था। तो मैं बोला चलो फिर। तो बोले तुम क्या टॉपिक पे बात करने वाले? तो मैं बोला वो प्रेसिडेंट ने बोला नहीं, उसने कुछ टॉपिक वॉपिक बोला नहीं। तो मैं बोला हम लोग वो महाबलेश्वर में वो पैराग्लाइडिंग किया था ना, आई एम गोइंग टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ पैराग्लाइडिंग। तो बोले भाई उसमें क्या आने का मेरे को, तुम जाके आओ। तो मैं गया, वो गोपाल जी का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था, मैंने प्रेजेंट किया तो सबको बहुत अच्छा लगा। गोपाल का भी फोन आया, बोले यार हम लोग एकदम खुश हो गए, तुमने तो कमाल कर दिया, ऐसा ऐसा करके मैं भूल गया उस चीज को। और 2-3 महीने के बाद उन्होंने एक फंड रेजिंग प्रोग्राम किया था हार्मनी क्लब में। तो बाईदास में उनका म्यूजिक का प्रोग्राम था, ओल्ड सॉन्ग का। तो वापस इनविटेशन आया, तो उस दिन पत्नी का मूड था, तो बोले चलो गाने सुनने को। तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, हम दोनों निकले यहाँ से, बाईदास में एंटर हुए और जैसे ऑडिटोरियम में गए, सामने से मैं देख रहा हूँ कि वो हार्मनी क्लब की प्रेसिडेंट कुछ लेडीज के साथ में आ रही। ज्यादा मैं कुछ सोचूं उसके पहले वो नजदीक आ गई। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने पत्नी को इंट्रोड्यूस किया और मैं कुछ बोलूं उसके पहले उन्होंने कहा मीना जी आपके हस्बैंड के क्या कहते हैं? पत्नी बोली क्या हो गया? अरे क्या बात करते हैं, उस दिन आए पूरा माहौल एकदम अलग कर दिया, ही इज एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट। पत्नी बोलती है क्या खाक, फर्स्ट टाइम ही ट्राइड ही कुडंट डू इट। देखो कंप्लीट मतलब इसको आप मिसकम्युनिकेशन बोल दो या तो बात है, लेकिन ऐसी घटनाएं घटती है और हमको हंसना है तो हंसने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है रोटरी में। दोस्तों मैंने 18 साल में रोटरी से बहुत पाया है, स्पेशली फॉर द न्यू मेंबर। रोटरी इज एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी चीज ऐसी है, मैं अपने आप को देखता हूँ तो जो लोग मुझे जानते हैं 18-20 साल पहले, उनको यकीन नहीं होता है कि ये वही विनोद ठक्कर है। I was miserably failed in my early career because I didn't know how to speak, especially in English. And I am proud now that I am so confident that I can speak anywhere at any point of time. I have organized a lot of conferences. This is all because of Rotary. Rotary is an organization. आप जितना दोगे उससे 10 गुना ज्यादा आपको मिलता है। काफी टाइम लोग पूछते हैं कि मेरा क्या, गुजराती में मारू शू, that expectation actually makes you unhappy. So never come with the expectation. Rotary, you should give your best, whatever you have. And every time I go to Rotary, I feel that after coming from Rotary, I become every day a better human being. Wish you all the best and thank you very much. Thank you विनोद भाई। विनोद भाई ने बताया सही है। Yesterday only I called him. Family night थी और family night में I wanted a good speaker who can have a kind of a करिश्मा कि वो पूरे सबको एंजॉय करे। बच्चे भी आए हैं, एंड्स भी आई हैं, तो रोटरी इन अ लाइटर वे। और हम लोग ने तो बहुत बार सुना है, लेकिन आप जो सुनोगे तो एवरी टाइम स्टिल आई वाज लविंग एक्टिंग, तो मैं सबसे ज्यादा हंस रहा था। So really enjoyable to hear him. May I ask Avinash to please propose word of thanks. गुड इवनिंग। पहले केसर भाई का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज शिवगेज का इंट्रोडक्शन किया और सिल्वर स्टार लीग दिस मंथ अनाउंस किया। और मैं विनोद जी का
क्लब की तरफ से आभार मानता हूँ कि उन्होंने हंसते हंसते रोटरी के बारे में सभी को जानकारी दी और मुझे लगता है नए मेंबर्स के लिए एक लर्निंग प्रोसेस था। तो आपकी जो एक कहने की स्टाइल है हंसते हंसते आप लोगों ने आपने सबको रोटरी के बारे में जो कुछ बताया, आप यहाँ आए, हमें आपका बहुमूल्य वक्त दिया, उसके लिए मैं रोटरी की तरफ से आपका आभारी हूँ। थैंक यू। Thank you, Avinash. May I ask Vivek to please token of appreciation and love.